So let's start our discussion on deep learning. As you can see that deep learning is not a new topic. This is quite old topic, and first time artificial neural network concept is given in 1956. And uh, when we have the concept of machine learning during that time, we also have the concept of artificial neural network. But during that time we were not able to implement the concept of ANN, because during that time our computation power was very low, and we also don't have did not have a lot of data during that time. So that's why we were not able to implement artificial neural network in practical scenario. Actually ANN remain on paper, and it not able to um, we were not able to implement in a real scenario. And you can clearly see the situation that how we have improved from last um, few years. So ultimately, we started our development of computer science in 1956, but during that time, the cost and the size of storage was very small. So this was the hard disk which was ported over aeroplane in 1956. So you can clearly see that how the technology has been changed now within just 50 years. So in 80s still we have the concept of hard disk, but during that time the cost of the hard disk was very high, and the use of computer was still limited to the developed countries. But nowadays you can see that actually the cost of storage is very low. The size of data storage has also been increased, and if we track the hard disk cost per gigabyte, you can see that virtually it has been reduced to zero. And actually at present we are getting free storage in the form of cloud or Google Drives. So we are actually able to reduce this cost to a very minimal, or ultimately it become just like a free, and we are all using storage as appear to be a free. We upload our photos or Google Drive and all those things. So this is the major reason that the cost of hard drive has been reduced, and we are able to store huge amount of data in modern world that give rise to the development of deep learning. And if we look further about the size and the capacity we have in term of data storage, you can further see that now at present we have two type of storage. One is hard disk and another is flash memory. Bacterial DNA is the future for data storage, but at present you can consider that we can store the data in flash memories, and the read write speed has been improved a lot. Data retention rate is more than 100 years. Power usage is quite low, and data density is also lot has been lot improved from last couple of years. And the future of storage maybe we will store the data maybe in the DNA itself, and then in DNA the data retention rate is more than 100 years, and actually the size of data is also very low, and power usage per gigabyte is quite low. So this may be the future of storage, but at present we can conclude that our flash memory still थोड़ा perform. माइक सर दूर कर लीजिए सर. So at present flash memory is solving our purpose, and it has a lot of storage. Uh, it has huge storage size as compared to our previous years. And if we track about the computing power, you can see that jo computing power have it has also been increased on a polynomial way, and now we are increasing the size at a much higher speed as compared to our previous years. And if you track 2020, so at present we are having here somewhere, so where we are able to achieve the computing power of a mouse, but we are moving very fast to achieve the computing power, or to actually simulate the computing power of human brain. And by 2050 it is considered that we will surpass the braining power equivalent to all the human brains.
So that may be the point where most of the AI applications in real world may be possible. So from this particular discussion, we can conclude that there are two major reasons for the development of deep learning, or you can say artificial neural network. फर्स्ट रीजन इज दैट कि हमने जो हार्ड डिस्क की कॉस्ट है वो रिड्यूस हुई है विद टाइम. एंड सेकेंड रीजन इज दैट कि जो कंप्यूटिंग पावर है उसको हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है. तो इम्प्रूव्ड कंप्यूटिंग पावर and second is the reduced cost of storage. These are the two major reasons for this improvement in deep learning or artificial neural network. Now let us discuss in detail that how actually human brain work and how we try to simulate the whole thing in a computer. So um, in our human brain, we receive the input from our sensory organs, and brain process this information which we received from sensory organ and produce some output. तो जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो इनपुट अपने सेंसरी ऑर्गन से लेता है, मल्टीपल न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, देन वी मेक सम डिसीजन इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. अब यहाँ पे जब हम हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारी जो इनपुट है हमारे ह्यूमन ब्रेन के केस में तो हमें सेंसरी ऑर्गन से मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी इनपुट्स है वो हमें सेंसर से या डिफरेंट जो फील्ड्स और कॉलम्स है वहां से हमें इनपुट मिलेगी और उस इनपुट को हम प्रोसेस करके एक आउटपुट डिसीजन तक पहुंचना चाहते हैं. So this concept of deep learning is given by actually the concept is old, but this deep learning has been promoted by Jeffrey Hinton. He's from Google, and CNN concept is given by this Jan LeCun. He's from Facebook. So ये दोनों टीचर स्टूडेंट हैं और they actually completely revolutionized the whole development of deep learning and CNN in this modern world. तो हम समझ सकते हैं कि जो गूगल है दैट प्ले मेजर रोल in providing multiple applications in terms of machine translation and speech recognition by using deep learning. And Facebook also used it for visual analysis, for identification of faces and all those things. तो आजकल हम CNN मॉडल यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और फेसेस. So that model is given by Jan LeCun, and he has put a lot of effort to implement all those concepts for Facebook. And Hinton is working in Google, and he has produced a lot of components or models based on deep learning components. So these are two considered as the uh, father of deep learning and CNN in the modern world. So as I have already discussed that here we, in case of artificial neural network, we have input values, but in case of brain, we receive these input values from sensory organ, but here we are receiving these input value maybe from sensors or from our data, which we have collected. Then this input will become our input layer, and these input values will give rise to any output value. Between input and output, we have another layer called as hidden layer. So these input nodes are connected together to hidden layer, and these hidden layer are further connected to output layer to produce the final output. So this is the overall artificial neural network which we try to build by using layers. So here we have some input data which we obtained from our data. This input data is processed through hidden layers, and after processing this data to hidden layer, we get the final output. And this is the output node. So we have three layers: input layer, hidden layer, and output layer in this artificial neural network. But in brain, we have lot of neuron to process this information. So when we have lot of hidden layers for processing of our data, then this ANN is transformed into deep learning. So the difference between traditional ANN and deep learning is only on the basis of number of hidden layer we have. So normally in artificial neural network, we have very limited number of hidden layer, just maybe 1 to 5. But in deep learning, we have huge number of hidden layers, maybe hundreds or sometime maybe thousands. And these number of hidden layer are actually process the input data and output, produce the output. And when we process the data through lot of hidden layers, this concept is called as deep learning. So
The difference between ANN and deep learning is only in the on the basis of number of hidden layer we have. In ANN, we have only one hidden layer, or you can say very limited number of hidden layers, but here we have large number of hidden layers. So when we have large number of hidden layers to process our data, this concept is called as deep learning. Now let us go deep into the to understand the working of human brain. So this is the human brain, and this is the first picture which is drawn on paper to depict the working of human neurons. So यहाँ पे हम न्यूरॉन को दिखा रहे हैं and these neuron actually process the information, and यहाँ पे हमारे brain में we have billions of neuron to process this particular information. So these neurons are actually getting the input from dendrites, and they further pass the information to another neuron through axon. So these are the two these are the main parts of the neuron. So it get the input from outer world from dendrites, and through axon they are connected to another neuron. So these are the way they are connected together. This is the another representation. So here we have a neurons. These are the input nodes, and through axon they are connected to another neuron. So this is the another neuron. So this is the connection between neuron 1 to neuron 2, and in that way we are actually passing the signal. Another important and interesting thing is that it has also been observed that one neuron is not actually physically connected to another neuron. There is some gap, and through electrical signals they are actually communicating with each other. So here we have equivalent representation of the whole scenario. Our human neuron use the information from dendrites, which is for getting the data from inputs. So here these are the equivalent representation. This is our neuron where the processing has been performed. So this is our neuron where we are actually performing the processing, and this is the axon which is used to connect the output of this to another neuron. So here we have this output which is used to pass the output of this nucleus to the another part. So this figure clearly tell you that actually we try to map the whole neuron into artificial computer network. So dendrites are replaced by inputs, nucleus is replaced by our neuron, and through axon actually it is connected to the it provides the output, and it connected to further more number of neurons. So here you can see that here we have input. This input is given to neuron, which is the processing power, processing house, and this processing further is connected to the output, and here we are getting the output. Here I am only showing one neuron, but actually there are multiple neuron. The output of one neuron may be fed back to the input of another neuron, and that way multiple hidden layers are formed. Now let us discuss about the number of output layer. So number of output layer actually depend upon the type of the system which we were building. अगर हमें classifier बनाना है, तो जहाँ मैं 3 classes let's suppose predict कर रहा हूँ, तो जितनी number of classes है, जितनी number of classes है, उतने ही हमारे पास number of nodes होंगे. कौन से nodes की बात कर रहा हूँ मैं? Output node की बात कर रहा हूँ. तो अगर मान लो 3 classes है मेरे पास, तो ये 3 आउटपुट नोड है, और यहाँ पे मुझे सभी की प्रोबेबिलिटी मिलेगी. सो लेट्स सपोज इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, ये 0.3 है, ये 0.2 है. तो जो विनिंग वाला होगा उसकी क्लास हम प्रेडिक्ट कर देंगे. सो दिस वे ये मल्टी क्लास क्लासीफायर है. सो मल्टी क्लास क्लासीफायर में जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो आपकी आउटपुट नोड डिसाइड करती है, और इनपुट नोड्स आपके जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं या फीचर्स हैं. तो ये मेरे पास फीचर्स हैं. जितने भी आपके फीचर्स हैं वो इनपुट नोड्स बनती हैं, और जितनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो आपकी आउटपुट नोड बनती है. सो दिस इज द कंसेप्ट. So let us suppose that you have x1, x2, x3 and x4 as input attributes. This is your output attribute, and here you are predicting, let's suppose 4 classes. तो मुझे बताएगा कोई कि कितनी इनपुट आउटपुट नोड्स होंगे इस केस में? 4 मेरे पास इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं, और मैं 4 क्लासेस प्रेडिक्ट कर रहा हूँ. सो दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ मल्टी क्लास. So how many input and output node will be there?
Anyone? You can unmute yourself and answer me. Hello? You can unmute yourself and answer me. सर 4 इनपुट क्लासेस हैं सर, x1 x2 x3 x4 और 4 आउटपुट क्लासेस है ABCD। हाँ, तो यहाँ 4 मेरे पास इनपुट नोड्स बनेंगी और 4 ही आउटपुट नोड बनेंगी। अगला मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, ट्राई टू आंसर इट, कि अगर मुझे रिग्रेशन इम्प्लीमेंट करनी है, रिग्रेशन का मतलब है कि मान लो मुझे कोई नंबर रियल वैल्यू इनपुट का आउटपुट करना है, सो रिग्रेशन के केस में आउटपुट नोड्स कितनी होंगी? सो टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर ऑन चैट बॉक्स कि अगर रिग्रेशन बिल्ड करना है तो आउटपुट नोड्स कितनी होंगी? तो मान लो आपको इनपुट इंडिया की स्कोर प्रेडिक्ट करनी है, तो आपके पास इनपुट नोड 4 है, तो उस केस में आउटपुट नोड कितनी होंगी अगर आप एक रियल नंबर प्रेडिक्ट करना चाहते हैं? सर 1। तो उस केस में आउटपुट नोड 1 होगी। सो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट टू लर्न। तो अगर आप रिग्रेशन बनाना चाहते हैं तो आउटपुट नोड 1 होगी आपकी, और अगर आप मल्टी क्लास क्लासीफायर बनाना चाहते हैं तो आउटपुट नोड्स उतनी होंगी जितनी आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस हैं। वाइल इनपुट का फंडा सीधा है, जितने आपके फीचर्स हैं उतने ही आपकी इनपुट वैल्यूज रहेंगी। तो अब डिस्कस करते हैं कि हम प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे स्निप्सिस के ऊपर हम वेट्स अप्लाई करते हैं इनपुट्स को, एंड दीज वेट्स आर एक्चुअली कंबाइंड टुगेदर। सो हियर वी हैव इनपुट्स, इस इनपुट पे हम वेट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे न्यूरॉन के ऊपर हम कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर आउटपुट आती है। इसको इस तरह से समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो आई विल गिव ट्राई टू गिव यू वन एग्जांपल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। सो लेट अस कंसीडर कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, और वो प्रॉपर्टी डीलर जो है वो बहुत एक्सपर्ट है, और वो किसी भी प्रॉपर्टी का जो साइज है, सॉरी जो कॉस्ट है, उसको बड़ी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करता है। तो वो क्या करता है, वो जिस भी प्रॉपर्टी में जाता है वहां से कुछ जो फील्ड्स हैं, इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं, उनको अपने माइंड में कैप्चर करता है। फॉर एग्जांपल वो देखता है कि नेबरहुड क्या है, प्लॉट साइज क्या है, कितने बेडरूम्स हैं, फ्लोरिंग कौन सी है, किचन अपग्रेडेड है या नहीं है, बाथरूम अपग्रेडेड है या नहीं है। तो ऐसे सारे इनपुट फीचर्स को वो कंसिडर करता है, और उन इनपुट फीचर को वो देखते हुए अपने ब्रेन में कुछ प्रोसेसिंग करता है, और इन सारे इनपुट फीचर को देख के अपने ब्रेन में कुछ प्रोसेसिंग करता है, और उसके बाद वो एक आउटपुट वैल्यू बोल देता है। और जो भी वो आउटपुट वैल्यू बोलता है वो मोस्ट प्रोबेबली वेरी क्लोज टू एक्चुअल प्राइस रहती है। तो वो क्या करता है, कुछ इनपुट वैल्यूज को माइंड में कंसिडर करता है, ऑब्जर्व करता है, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि वो बेडरूम्स देखता है, फ्लोरिंग देखता है, प्लॉट साइज देखता है, नेबरहुड चेक करता है। तो ऐसे काफ़ी सारे इनपुट एट्रीब्यूट्स को देखता है। उन सारे इनपुट एट्रीब्यूट्स को नोट करके ब्रेन में कुछ प्रोसेसिंग करता है और एक नंबर बोलता है, और जो नंबर है वो एक आउटपुट वैल्यू है, एंड वी फाइंड दैट कि दिस नंबर इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। सो इस तरह से प्रॉपर्टी डीलर सारे काम करते हैं। अब हुआ क्या कि लेट्स सपोज उस प्रॉपर्टी डीलर का काम और बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और एंड ही इज कंसिडर्ड एज द एक्सपर्ट इन प्रिडिक्टिंग द प्राइस ऑफ द हाउस, और सभी उसके पास जाते हैं सजेशन लेने के लिए। तो अब हुआ क्या कि लेट्स सपोज उस प्रॉपर्टी डीलर को थोड़ी देर के लिए, 1 महीने के लिए बाहर जाना है। तो अब उसका जो काम है पीछे से करने के लिए, उसका जो स्टाफ है वो देखता है कि मेरे स्टाफ में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो जिसके पास ये एक्सपीरियंस हो और वो प्राइसेस को प्रॉपरली प्रेडिक्ट कर सके। तो वो प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, वो आपके पास जाता है एज ए कंप्यूटर इंजीनियर, और आपको बोलता है कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाओ जो जो हाउस के प्राइस को प्रॉपरली प्रेडिक्ट कर सके। तो अब आपके पास ये टास्क आता है कि यू हैव टू डिजाइन ए सिस्टम विच कैन प्रेडिक्ट द हाउस प्राइस एक्यूरेटली। तो अब आप क्या करते हो कि अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप ये सारा डेटा इनपुट वेरिएबल्स अपने एक मॉडल में डालना चाहते हैं, और यू नो दैट कि उसका ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है, वो सारे मॉडल्स को लेता है, ब्रेन में कुछ प्रोसेसिंग करता है और एक आउटपुट देता है।
तो अल्टीमेटली क्या होता होगा, वो जो यहाँ पे लेट्स सपोज नंबर ऑफ बेडरूम्स है, यहाँ पे मेरे पास प्लॉट साइज है, लेट्स सपोज यहाँ पे फ्लोरिंग है, तो अल्टीमेटली क्या होता होगा कि उसका ब्रेन हर पैरामीटर को एक वेट देता होगा इंटरनली, कि उसको पता होगा कि अगर बेडरूम अच्छे हैं या 3 है या 4 है तो उसकी कितनी वेटेज है, अगर प्लॉट साइज है तो उसकी कितनी वेटेज है, और फ्लोरिंग की कितनी वेटेज है। उसको हर एक इनपुट फीचर की जो वेटेज है वो एक्सपीरियंस के साथ पता है। और वो एक्चुअल प्राइस क्यों प्रेडिक्ट कर पाता है, एक्चुअल प्राइस और रियल प्राइस उसका क्लोज क्यों रहता है, क्योंकि जो उसके वेट है जो उसके दिमाग में ट्रेन हुए हुए हैं वो बहुत एक्यूरेट है। और जब वो इन वेट्स के साथ वो सबको कंबाइन करता है तो उसकी जो वैल्यू निकलती है वो एक्चुअल के साथ बिल्कुल मैच करती है। तो अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक तरह की ऐसी होगी कि मुझे अपने कंप्यूटर में ये इनपुट एट्रीब्यूट्स फीड करने हैं और एक आउटपुट देनी है। तो प्रॉब्लम ये हुई कि मैं अपनी मशीन को कुछ इस तरह से ट्रेन करूं कि वो ये वेट्स जो हैं जो उसके ब्रेन में अप्लाई हो रहे हैं ऑन दीज इनपुट कॉलम्स, मैं इसको क्या कर सकूं, फाइंड आउट कर सकूं। तो अगर मेरी मशीन इस ब्रेन इन वेट्स को एक्चुअली फाइंड आउट कर लेती है जो उसके ब्रेन में ट्रेन हो रहे हैं, जो उसके न्यूरॉन अप्लाई कर रहे हैं, तो आई विल एबल टू क्रिएट ए सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेन, तो जो उस प्रॉपर्टी डीलर का इक्विवेलेंट है या उसको रिप्लेस कर सकता है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई कि मैं अगर ये वेट्स को प्रॉपरली फाइंड आउट कर लेता हूँ तो आई कैन माय मशीन कैन आल्सो प्रिडिक्ट द एक्चुअल प्राइस एंड कैन प्रिडिक्ट द प्राइस व्हिच इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल प्राइस। तो इस पूरी की पूरी जो सिस्टम है, तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमें जो वेट्स हैं उनको प्रॉपरली प्रेडिक्ट करना है, और अगर मैं वेट्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर लेता हूँ तो मेरी जो जॉब है वो डन हो जाएगी। तो न्यूरल नेटवर्क जो है ये इसी के ऊपर काम करता है, वो जो यहाँ पे हर इनपुट के ऊपर हम वेट अप्लाई करते हैं और हमारा टास्क है इन वेट्स की वैल्यू को एक्यूरेटली फाइंड आउट करना। एंड इफ वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज वेट्स एक्यूरेटली, द जॉब विल बी डन। So now the question is how we find out these values accurately. तो उसके ऊपर हम क्विकली थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो जो न्यूरॉन है वो किस तरह से काम करता है, वो पहले इनपुट वैल्यूज लेता है। तो रैंडमली मैं कुछ वेट्स हर इनपुट वैल्यू पे अप्लाई करता हूँ। दीज रैंडम वेट्स आर प्रोसेस्ड टुगेदर इन ए न्यूरॉन। तो फर्स्ट स्टेप में मैं हर इनपुट के ऊपर एक रैंडम वेट असाइन करता हूँ। सेकेंड स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप में जो वेट्स आते हैं मैं उनका एक क्यूमुलेटिव सम फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो आप समझ सकते हैं फर्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट इन वेट्स को लेके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर एक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करता हूँ। तो इस क्यूमुलेटिव सम के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई हो रहा है और ये फंक्शन डिसाइड करता है कि क्या आगे जाएगा। तो अब मैं इस जो वैल्यू मुझे मिली है इसके ऊपर एक फंक्शन अप्लाई करता हूँ एंड दैट फंक्शन से जो आउटपुट मिलती है वो थर्ड स्टेप में मैं आगे पास आउट करता हूँ। सो एक्चुअली आई हैव 3 स्टेप प्रोसेस इन ट्रेनिंग ऑफ ANN। इन फर्स्ट स्टेप जो वेट्स हैं उनको इनपुट्स के साथ मल्टीप्लाई करके क्यूमुलेटिव सम फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड स्टेप के ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं टू डिसाइड विच विल बी पास टू द आउटपुट, एंड इन थर्ड स्टेप आई गिव द आउटपुट। तो एक्टिवेशन क्या करता है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। वो देखता है कि कौन सी वैल्यू पास करती है, कौन सी वैल्यू डिस्कार्ड करनी है। तो अल्टीमेटली मुझे फाइनल आउटपुट तक पहुंचने के लिए ये 3 स्टेप पास परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई, एक्टिवेशन, और इससे मुझे एक आउटपुट मिलती है। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है मुझे, कि ऐसे वेट्स को आइडेंटिफाई करना जिससे मेरी जो एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू जो है वो बहुत क्लोज हो एक दूसरे से। अब इस प्रोसेस को इस फिगर से समझते हैं। मैं को स्किप कर रहा हूँ स्लाइड्स। हाँ, तो अब होता क्या है, ये मेरे पास है इनपुट नोड्स। यहाँ पे मैं कुछ वेट्स अप्लाई कर रहा हूँ। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकंड स्टेप हुआ, और इससे आउटपुट मिलेगी। ये मेरे पास आउटपुट वैल्यू है और ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यू है। सो आई होप दैट यू हैव दिस आइडिया कि अभी तक जो फ्लो है वो क्लियर हो गया कि फर्स्ट स्टेप में हम ये परफॉर्म करेंगे,
सेकेंड स्टेप में मैं इसके ऊपर एक्टिवेशन अप्लाई करूंगा। थर्ड स्टेप में मैं इसको जब पास करूंगा तो मुझे एक आउटपुट वैल्यू प्रिडिक्टेड मिलेगी जिसको मैं वाई हैट कह रहा हूँ और एक्चुअल वैल्यू वाई है। तो मैं क्या करता हूँ, इन वेट्स को रैंडमली इनिशियलाइज करता हूँ। तो मैं रैंडम इनिशियलाइज करके इन वेट्स को फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करूंगा, सेकंड स्टेप परफॉर्म करूंगा और एक आउटपुट वैल्यू प्रिडिक्ट करूंगा। अब हम इस आउटपुट वैल्यू को जो मैंने प्रिडिक्ट की है, प्रिडिक्टेड वैल्यूज को एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर करूंगा, विच इज दिस। तो एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यूज को कंपेयर करके हम एक एरर निकालते हैं, जैसे कि हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी किया था और बाकी के मॉडल्स में भी किया। और एरर के लिए हम सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस करते हैं। तो ये मैंने एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस कर लिया, इसको कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। आई होप दैट यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस। तो मैंने फर्स्ट आइट्रेशन अभी की है, वेट्स को रैंडम इनिशियलाइज किया, मल्टीप्लाई किया, एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, उसके मुझे आउटपुट मिली, इस आउटपुट को एक्चुअल से कंपेयर किया और एक कॉस्ट फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट की। लेट्स सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट फंक्शन। अब क्या करेंगे, अब हमारा ऑब्जेक्टिव या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होगी कि अब मुझे इस वेट्स को तब तक चेंज करना है जब तक ये कॉस्ट फंक्शन जीरो या मिनिमम ना हो जाए। तो अब मैं इस कॉस्ट फंक्शन को देखता हूँ और इस कॉस्ट फंक्शन को देखते हुए मैं बैक प्रोपेगेट करता हूँ और बैक प्रोपेगेट करते हुए इन वेट्स को एडजस्ट करूंगा सो दैट कि ये कॉस्ट मिनिमम हो। सो आई रेंडमली मेक सम चेंजेस इन दीज वेट्स। फिर इसको हम प्रोसेस करेंगे फॉरवर्ड। फिर हम वेट कैलकुलेट करेंगे और एरर कैलकुलेट करेंगे। तो अगली बार जो एरर है, लेट्स सपोज कुछ कम हुआ, फिर मैं दोबारा चलता हूँ। तो ये मैं इस तरह से आइट्रेट करता जाता हूँ, फॉरवर्ड बैकवर्ड, और हर एक के बाद ये वैल्यू चेंज होती रहती है और अल्टीमेटली हम वहाँ स्टॉप करते हैं जब कॉस्ट फंक्शन या एरर की वैल्यू जीरो हो जाती है। सो जब एरर जीरो हो जाएगा तो अल्टीमेटली आई एम एबल टू फाइंड आउट दोज वेट्स विच आर एक्यूरेट। और ये वही वेट है जो उस प्रॉपर्टी डीलर के ब्रेन में ट्रेंड थे, जिससे वो एक्यूरेट वैल्यूज को प्रोड्यूस कर पाता था। तो इसको एक और फिगर से समझते हैं या एग्जाम्पल से समझते हैं। सो लेट्स सपोज दिस इज माय सिचुएशन। सो यहाँ पे मैं आपके जो मार्क्स हैं वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये माना गया कि जो आपके मार्क्स हैं वो इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं कि आप कितनी देर पढ़ते हैं, कितनी देर सोते हैं और आपके क्विज में क्या मार्क्स हैं या क्विज में क्या स्कोर है। सो हियर वी आर कंसिडरिंग दीज थ्री इनपुट एट्रीब्यूट्स कि आप कितनी देर पढ़ते हैं, कितनी देर सोते हैं और आपकी क्विज में क्या परफॉर्मेंस है। ये फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो अब मैं इसके लिए ANN मॉडल ट्रेन करना चाहता हूँ। सो ये रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन है? रिग्रेशन। तो ये रिग्रेशन है। तो आउटपुट नोड्स कितनी होंगी मेरे पास? एक। वन। तो दैट्स व्हाई वी हैव वन आउटपुट नोड। इनपुट नोड्स कितनी होंगी? हाउ मेनी कॉलम्स वी आर यूजिंग इन दिस केस? 3। 3। तो ये मेरे पास 3 कॉलम है। तो ये आप देखते हैं कि ये तीनों इनपुट वैल्यू से मैप होते हैं। स्टडी आवर्स x1 बन गया, स्लीप आवर्स x2 बन गया, क्विज के मार्क्स x3 हो गए और इसके ऊपर आप वेट अप्लाई करेंगे और इससे आपको एक प्रेडिक्टेड वैल्यू मिलेगी। तो आप ये वैल्यूज को पकड़ते हैं और ये 93 आपकी एक्चुअल स्कोर हो गई। तो आपने इन वेट्स के ऊपर रैंडमली कुछ वेट्स अप्लाई किए और कुछ कैलकुलेट किया। सो लेट्स सपोज आपकी आउटपुट वैल्यू आती है 80 और एक्चुअल वैल्यू है 93। इसकी बेसिस के ऊपर आप कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। ये कॉस्ट फंक्शन की आइडिया लेने के बाद आप, ये पहले मैंने ऐसे प्रोपिगेट किया था, दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड प्रोपिगेशन। अब आप क्या करते हैं, बैकवर्ड प्रोपिगेट करते हैं। सो पहले फॉरवर्ड प्रोपिगेट किया, अब बैकवर्ड प्रोपिगेट करते हैं और इस बैकवर्ड प्रोपिगेशन के समय में वेट्स को ट्यून करता हूँ। तो वेट्स ट्यून होते हैं और अब इन वेट्स को चेंज किया जाता है। वेट चेंज होने के बाद फिर वापस ये x1 x2 से मल्टीप्लाई होते हैं और इनकी वैल्यूज कैलकुलेट की जाती है। नाउ लेट्स सपोज इस टाइम मेरी वैल्यू आती है 82 और एक्चुअली है 93। इसकी बेसिस के ऊपर अगेन हम कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। सो इस बेसिस के ऊपर फिर वापस चलते हैं। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपिगेट होता है और हर फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपिगेशन के बाद कॉस्ट फंक्शन आपका चेंज होता जाएगा और हम तब तक ये फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपिगेट करते जाते हैं जब तक आपका कॉस्ट फंक्शन जीरो नहीं होता। सो एक फॉरवर्ड प्रोपिगेशन और एक बैकवर्ड प्रोपिगेशन मेरा एक साइकिल पूरा करता है, जिसको मैं बोलता हूँ इपॉक्स।
तो अल्टीमेटली मेरा मॉडल काफ़ी सारे इपॉक्स में प्रोपिगेट करता है, काफ़ी सारी बार फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपिगेट करता है, या तब तक करता जाता है जब तक हम एरर को मिनिमाइज नहीं कर पाते। एंड वंस यू फील दैट कि एरर मिनिमाइज हो गए हैं या इम्प्रूवमेंट एरर में होनी बंद हो गई है, सो देन वी स्टॉप आवर ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि हम रैंडमली फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपिगेट करते हुए वेट्स की ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और अगर मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं तो आपको सारे रिकॉर्ड्स के ऊपर ये प्रोसेसिंग करनी है और उसके बाद आपको वेट्स प्रोसेस करने हैं। So ultimately, this is the basic working principle of artificial neural network, and I hope that this give you a fair idea कि ultimately हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो वेट आपके ब्रेन में ट्रेंड है या जो प्रॉपर्टी डीलर के ब्रेन में ट्रेंड थे विद एक्सपीरियंस, वी हैव टू फाइंड आउट दीज वेट्स by our machines by forward and backward propagating, and if we are able to find out that, we will able to solve the problem. So this is the working principle of artificial neural network. So ultimately we need multiple neurons to process this information. There are multiple layers involved in that, and how to find the optimized weight from machine learning point of view, this is another point of concern. So कल के सेशन में हम यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे और वी विल डिस्कस दैट कि हम किस तरह से ऑप्टिमाइज्ड वेट तक पहुंच पाते हैं। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये स्टेप तो सिंपल है, मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन सेकंड स्टेप के ऊपर आप एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं। सो जो सेकंड स्टेप है एक्टिवेशन फंक्शन का, वो क्या है, कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शन है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। थर्ड फिर आउटपुट है, वो भी सिंपल है। सो फर्स्ट एंड थर्ड यू नो दैट, बट नाउ व्हाट आर एक्टिवेशन फंक्शन एंड व्हाई वी अप्लाई दैट, ये कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। यस सर हम लोग कोर्स केरास में करेंगे?